آج ویو 360 میں کیا امریکہ میں گھروں کی ملکیت اور قیمتوں میں سیاہ فاموں کے ساتھ امتیازی برتاؤ ہو رہا ہے؟ سیاہ فام علاقوں میں گھروں کی قیمت 30% کم ہوتی ہے یا $48,000 فی گھر۔ چین کے علاقے سنکیانگ کے حراستی مراکز سے فرار ہو کر امریکہ پہنچنے والوں کی کہانی آج کے شو میں۔ 2015 سے 2018 تک کے اس عرصے میں میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور آپ کو لیے چلیں گے لاہور کی نینسک پھول منڈی، جہاں پھولوں کی نیلامی ہوتی ہے۔ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਗੜਨਾ ਦਾ ਜੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੜਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਫੇਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے علاقے میاں چنو میں 9 مارچ کو گرنے والا بھارتی میزائل، جو بھارت کے مطابق ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے غلطی سے فائر ہوا تھا، ابھی تک خبروں میں ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کر گرنے والے اس میزائل کے بارے میں بھارت کا بغیر ثبوت فراہم کیے ایک سادہ سا بیان کافی نہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت اس واقعے کو صرف حادثاتی واقعہ کہہ کر مسترد نہیں کر سکتا اور اس کی مزید تفصیلات جاری ہونی چاہیے۔ کل پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں اس واقعے کی مشترکہ تحقیقات کے لیے بھارت پر زور ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ 2 جوہری طاقتوں میں اس طرح کا واقعہ دنیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا بھارتی میزائل کے پاکستان میں گرنے کے بعد پاکستان بھی کوئی جوابی کارروائی کر سکتا ہے؟ ولسن سینٹر کے ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کولمن نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان جواب دینے کے لیے تیار بھی تھا۔ اسی موضوع پر مزید تجزیے کے لیے میری بات ہوئی مائیکل کولمن سے۔ میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی اشارہ دیا ہے کہ واقعے کی وضاحت پر مبنی بھارت کا بیان مفاہمتی انداز کا تھا، لیکن اس بیان کے اثرات خاصے پریشان کن ہیں۔ اصل میں بھارت کہہ رہا ہے کہ غلطی سے ایک سپر سونک میزائل لانچ ہو گیا جو کہ تقریباً 80 میل کا سفر طے کرتے ہوئے سرحد پار پاکستانی علاقے میں جا گرا۔ یہ پاکستان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اسے بھارت کی جانب سے شروع میں یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ یہ نادانستہ لانچ تھی، لہٰذا ہم ایک ایٹمی حریف کی غلطی کو دیکھ رہے ہیں جس نے بقول بھارت کے حادثاتی طور پر ایک تیز رفتار میزائل کو ایک دوسرے ایٹمی حریف پاکستان کی سرحد میں بھیج دیا۔ اب خوش قسمتی سے چونکہ تعلقات پہلے کے مقابلے میں کم کشیدہ ہیں، اس لیے میرے خیال میں اس معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچا سمجھا گیا اور بات آگے نہیں بڑھی۔ ایک اور خوش قسمتی یہ کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ فضا میں اور نہ زمین پر، اور یہ ایسی چیز نہیں تھی جسے پاکستان مار گرا سکتا تھا، تو یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو سکتا تھا۔ کیا پاکستان اور بھارت اس واقعے کے بعد اپنے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کرتے رہیں گے؟ کس حد تک تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کے؟ پاکستان کی طرف سے ایک سوال نامہ بھی بھیجا گیا ہے بھارت کو اس واقعے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے۔ میرا نہیں خیال کہ جنگ بندی خطرے میں ہے، اور مجھے اس بات پر زور دینا چاہیے کہ جنگ بندی صرف لائن آف کنٹرول پر مرکوز ہے۔ پاکستان نے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ پاکستان میں عالمی برادری سے مداخلت کرنے کو کہا ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا۔ میرے خیال میں پاکستان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا بھارت ان تحقیقات کے وعدے پر عمل کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس بات کا بہتر اندازہ ہو سکے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ لیکن حقیقتاً یہ جنگ بندی اہم ہے کیونکہ اسی نے 2 فریقوں کے درمیان تناؤ کو فعال کیا، خاص طور پر 2019 کے بعد سے جب دونوں نے تقریباً جنگ شروع کر دی تھی اور ان میں بہت کشیدگی تھی۔ اگر اس وقت ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو ایک طرف روس یوکرین جنگ جاری ہے جس میں بھارت اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا، تو آپ کے خیال میں اس واقعے کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کریں تو کیا حالات بنتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جنوبی ایشیا کے زیادہ وسیع جغرافیائی منظر نامے کو دیکھیں جو یورپ اور اس سے آگے یوکرین کی جنگ تک پھیلا ہے،
تو یہ واضح ہے کہ نادانستہ طور پر اس میزائل کا پاکستان پہنچ جانا نازک معاملہ ہے۔ میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں حالیہ مہینوں میں کچھ اہم تعلقات کی سمت کو دیکھنا ہوگا۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو گہرا کر رہا ہے اور چین کے ساتھ اپنے پہلے سے مضبوط تعلق کو بھی ایک دوسری سطح پر لے جا رہا ہے، اور یہ بھارت کے لیے بہت تشویشناک ہے کیونکہ یقیناً بھارت کے روس کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات پر فکر مند ہے۔ چین ایک بڑا اسٹریٹجک حریف ہے، لہٰذا بھارت پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات کو گہرا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس سے بھارت اور پاکستان کے بیچ سفارتی اور جیو پولیٹیکل تناؤ بڑھنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ Thank you, Michael. Thank you. Thank you. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ صدیوں پہلے باز پالنا شوق سے زیادہ ایک ضرورت تھی۔ قدیم تہذیبوں میں انسان نے پرندوں اور جانوروں کی مدد سے شکار کرنا سیکھا۔ اس طرح انسان اور باز کے درمیان دوستی شروع ہوئی۔ کئی دوسرے ممالک کی طرح امریکہ میں بھی باز پالنے کا شوق اور فن صدیوں پرانا ہے، لیکن بازوں کو سدھانا اور ان کی تربیت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو جلد ویو 360 میں ایک ایسے ہی ماہر فالکنر سے ملوائیں گے جو یہ ہنر دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ ایک صبح میں نے اذان سنی جو کہ مسلمانوں کی نماز ہوتی ہے، اور میں نے اسے پہلے شاید 30-40 بار سنا تھا، مگر اس صبح سے پہلے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایک بردر اٹھا اور اس نے اذان دی اور میں نے باہر دیکھا تو مجھے سمندر کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا، جیسے میں ایک ساحل پر بیٹھا تھا۔ میں پانی کو سونگھ سکتا تھا لیکن میں تھا جیل میں۔ بس وہ تجربہ مجھے کہیں اور لے گیا۔ امریکہ میں نسلی تعصب سے پیدا ہونے والی عدم مساوات کے خلاف سیاہ فام افراد کی جدوجہد تاریخ بہت پرانی ہے۔ آج بھی مختلف شعبہ زندگی میں یہ تعصب دکھائی دیتا ہے۔ اگر کسی سیاہ فام نے گھر خریدنا ہو تو مختلف اعداد و شمار کے مطابق سیاہ فام شہریوں کی طرف سے گھر کے قرض کے لیے بینکوں کو دی جانے والی 50% درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں۔ کیا امریکہ گھروں کی قیمتوں کے حوالے سے بھی سیاہ فام آبادی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے؟ آج کے سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری نے یہی جاننے کی کوشش کی۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ امریکہ سے نہ صرف باہر بلکہ اندر بھی ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہاں سیاہ فام اکثریتی علاقے غیر محفوظ ہیں، ان میں جرائم کی شرح زیادہ ہوتی ہے، ان علاقوں میں اسکولز اچھے نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ مختلف تجزیوں سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ اس طرح کے تاثر کا ایسے علاقوں میں منفی اثر ہوتا ہے جہاں سیاہ فام آبادی کی اکثریت ہوتی ہے اور وہاں پراپرٹی کی قیمتیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال واشنگٹن ڈی سی میں واقع تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے اسکالر آنڈرے پیری کے ریاست پینسلوینیا میں واقع آبائی گھر اور اس علاقے کی دوسری پراپرٹیز کو درپیش آئی۔ This is 1320 Hill Avenue, Wilkinsburg, Pennsylvania. یہ ریاست پینسلوینیا کے علاقے ولکنسبرگ کے ہل ایونیو علاقے کا مکان نمبر 1320 ہے، وہ گھر جہاں میری پرورش ہوئی۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ ویب سائٹس پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی سال میں اس کی قیمت 15 سے 16 ہزار رہی ہے۔ پھر 70 کی دہائی میں یہاں سفید فام آبادی میں تیزی سے کمی اور سیاہ فام آبادی میں اضافہ ہوا۔ جب کسی علاقے کی سفید فام آبادی کم اور سیاہ فام آبادی زیادہ ہو جائے تو اس کی برانڈنگ مختلف انداز سے کی جاتی ہے۔ ہم نے ایک تحقیق کی محلوں کی تعلیم، جرائم اور سیکیورٹی جیسے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ سیاہ فام علاقوں میں گھروں کی قیمت 23% کم ہوتی ہے یا $48,000 فی گھر۔ لوگوں کو سیاہ فام کمیونٹی میں جرائم کی شرح اصل سے دگنی نظر آتی ہے، بدترین تعلیم کہیں زیادہ نظر آتی ہے اور سیاہ فام امریکہ کا یہ منفی تاثر گھروں کی قیمتوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر آنڈرے کی 2020 میں شائع ہونے والی کتاب نو یور پرائس میں
वाशिंगटन डीसी समेत अमेरिका के 6 स्याह फाम अक्सरियत वाले शहरों में प्रॉपर्टी पर तहकीक की गई है। उनकी किताब में कहा गया है कि जब भी किसी मोहल्ले में 10% या ज़्यादा स्याह फार्म आबाद हो जाएं तो सफ़ेद फार्म उसे छोड़कर जाने लगते हैं, जिसे वाइट फ्लाइट कहा जाता है। अमेरिका में हाउसिंग की मार्केट में मजहब, सिन्फ, नस्ल और माजूरी वगैरह की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने के लिए 1968 में फेयर हाउसिंग एक्ट पास किया गया। लेकिन क्या ज़मीनी हक़ाइक़ इस एक्ट की तवक्कुआत से मुख्तलिफ हैं? सबको क्यूरियोसिटी होती है कि जो हम एरिया में घर देख रहे हैं उस एरिया का डेमोग्राफिक क्या है, रेशियल डेमोग्राफिक क्या है, इस एरिया में किस परसेंटेज में है रेशियल डिवीज़न, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि स्कूल कैसा है, उनके बच्चों की सेफ्टी। डेफिनेटली इट्स अ क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल होता है हम रियल्टर्स के लिए आंसर करना। इट्स अ वेरी फाइन लाइन। वी आर नॉट सपोज्ड टू डिस्कस रेस। जितना केयरफुली हैंडल कर सकते हैं उतना वी टेल देम कि ठीक है आप अपनी रिसर्च खुद करें, विदाउट मी डायरेक्टली टेलिंग देम कि हाँ भाई यहाँ पर ये रेस ज़्यादा है, यहाँ पर ये रेस कम है। वाशिंगटन तजादात का मिलाप है, शदीद गुर्बत और बेइंतहा अमारत दोनों साथ साथ देखे जा सकते हैं। ऑन रिपेरी के मुशाहिदात के एन मुताबिक यहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ दिन के वक्त भी लोग घूमने से डरते हैं, जैसे एनाकोस्टिया, जहाँ जराइम की शरह डीसी के बाकी इलाकों से 38% ज़्यादा और बच्चों में गुर्बत की शरह 47% है। इस इलाके के अक्सर घराने सालाना $21,500 कमाते हैं, जबकि घरों की औसत कीमत $4 लाख से कम है। दूसरी जानिब डीसी के इलाके जॉर्ज टाउन की 71% आबादी सफ़ेद फार्म और 4% स्याह फार्म है। यहाँ हर 1,000 की आबादी में 1 से भी कम पुरतशद्दुद जराइम के वाक़यात पेश आते हैं। यहाँ घरों की औसत कीमत $10.5 लाख से ज़्यादा है, जबकि यहाँ घरानों की औसत सालाना आमदन $1 लाख है। डीसी में तो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं इसको ख़त्म करने के लिए। डेवलपमेंट साउथ वेस्ट में सबसे ज़्यादा हुआ है और अब नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ डीसी में यू कैन सी द सेम थिंग, जेंट्रिफिकेशन हो रहा है। और साउथ ईस्ट अक्रॉस द रिवर इफ़ यू गो एनाकोस्टिया के पास प्रॉपर्टी वैल्यूज़ आर रियली लो। पाकिस्तानी अवाम अमेरिका में इस मसले को किस तरह देखते हैं, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। अब बात करते हैं कुछ चीन के इलाके सिंकियांग की, जहां हरासती मराकज़ पर बहुत तनकीद होती है, जिनमें मुसलमानों को कैद रखा जाता है। बीजिंग इन्हें पेशा वाराना तालीमी और तरबियत के मराकज़ कहता है, जबकि इन हरासती कैंपों में नज़रबंद लोगों से मिलने वाली मालूमात और ड्रोन से ली गई तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती हैं। इन कैंप्स से बच निकलने वाले कहते हैं कि चीन में इग़ोर और दूसरी मजहबी और लसानी अक़लियतें अपने मजहब की वजह से जुल्म और सितम का शिकार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ऐसे बहुत से अफराद की कहानियां आप तक ला रहा है जो इन हरासती मराकज़ से फरार होकर अमेरिका आए हैं। हौलनाक तफसीलात के साथ ये मुख्तसर नावल चीन में वीगर मुसलमानों की नस्ल कुशी की कहानी बयान करता है। एक 33 साला वीगर खातून मेरगुल तरसून ने ये तस्वीर कशी की है। ये दास्तान सन 2015 में एक चीनी कैंप में मेरगुल तरसून के तजर्बे पर मबनी है। ये नॉवलेट शेयर अमेरिकन नामी वेबसाइट पर शाया किया गया, जो अमरीकी दफ्तर खारजा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अमरीकी खारजा पॉलिसी से मुतालिक मालूमात को दुनिया भर से शेयर किया जाता है। मेरगुल तरसून कहती हैं कि उन्हें जब इस हिरासती मरकज़ में लाया गया तो उन्हें उनके 3 नौज़ायदा ट्रिपलेट्स बच्चों से अलहदा कर दिया गया। अगले 3 बरस वो इस कैंप में रहीं। वो कहती हैं कि इस दौरान उनका एक बच्चा फाका कशी से हलाक हो गया। From 2015 until 2018, 2015 से 2018 तक के इस अरसे में मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हिरासत में मुझे जहनी और जिस्मानी अजियतें दी गईं और मैंने इस कैद खाने में 9 औरतों की मौत देखी। 40 साला ज़मरुद्दाऊद ने एक हिरासती कैंप में 2 महीने गुजारे। इस दौरान चीनी डॉक्टरों ने उन्हें एक नामालूम दवा दी, जिसके नतीजे में वो और उनके शौहर अब वालिदैन नहीं बन सकते। और इन 62 दिनों में मैंने कई चीज़ों का मुशाहिदा किया। इनमें एक ज़बरदस्ती अद्वियात लेना था। मैं नहीं जानती थी कि हम क्या दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो दवाई देते थे। यहाँ तक कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हमने दवा निगल ली या नहीं, हमारे मुंह में अपनी उंगलियां डालकर चेक करते थे। उनका कहना है कि जब वो फरार होकर अमेरिका आईं तो अमेरिका में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें बांझपन की दवा दी गई थी और अब उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। 60 साला अब्दुल्ला नूर भी एक वीगर हैं जो अब कनाडा में रहते हैं। वो कहते हैं कि जब चीनी हुक्काम ने उनसे मुतालबा किया कि वो कैंप में 3रे साल रहने के लिए फीस अदा करें तो वो फरार होकर काज़ाकिस्तान चले गए। चीनी पुलिस ने वहां भी उनका सुराग लगा लिया।
किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान में चीन के जासूसी करने वाले इदारे उइगर लोगों का पता चलाकर वहाँ की पुलिस को उनकी इत्तला देते थे। वहाँ की पुलिस हमें पकड़कर वापस चीन के हवाले कर देती थी। बरतानवी अटॉर्नी रॉडनी डिक्सन हेग में जराइम की समाअत करने वाली बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में चीन के कैंप्स में बच जाने वाले वीगर अफराद की पैरवी करते हैं। रॉडनी के मुताबिक चीन की सिक्योरिटी सर्विसेज ने वीगर लोगों को जुल्म सितम का शिकार बनाया है, उन्हें दूसरे मुल्कों में ज़ेर हिरासत रखा है और उन्हें सीधा इज्तिमाई बेकार कैंपों में भेज दिया है। सिर्फ ताजिकिस्तान ही से हजारों अफराद मुल्क बदर कर गए या गायब कर दिए गए। एक ज़माने में ताजिकिस्तान में तकरीबन 3000 वीगोर रहते थे, लेकिन अब ये तादाद ड्रामाई तौर पर घटकर 100 के करीब रह गई है। दूसरे पड़ोसी मुल्कों में भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका समेत दर्जनों मुल्क शिनजांग के मुसलमानों के साथ किए जाने वाले सलूक पर बीजिंग की मजम्मत कर चुके हैं। अमेरिका ने 34 ऐसे इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं जो वीगर अक़लियत से मुतालिक चीन की पॉलिसियों से मुंसलिक थे। चीन ने वीगर आबादी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तरदीद की है और माजी में कहा है कि ये तनसीबात या तो पेशा वराना तरबियत के मराकज़ हैं या मजहबी इंतहा पसंदों को असर नौ तालीम देने की दरसगाहें हैं। बीजिंग ने वाशिंगटन पर उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। अमेरिका की नाम नेहाद ताज़ीरात चीन को सिंकियांग के ज़रिए कंट्रोल करने के मज़मूम अज़ाइम की अक्कास हैं और अमेरिका की जमहूरियत के पर्दे में छुपी मुनाफिकाना आमरीत और इंसानी हुकूक की आड़ में गलबा हासिल करने वाली फितरत की पूरी तरह अक्कासी करती हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन के वीगर मुसलमानों के साथ सलूक की जड़ें इस्लामोफोबिया में और इलाके के कुदरती वसाइल बशमुल तेल और गैस पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक शिनजांग के किसी मुमकिन दौरे के बारे में चीनी ओहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। संजार हमीदोफ के साथ खालिद हमीद, वॉइस ऑफ अमेरिका। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। व्यू 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। दूर दराज पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा के खेलों के शौकीन अफराद को बर्फानी तोदों के खतरे से आगाह करने और उनकी मदद करने के लिए एवलांशेस की पेशगोई करने वाले बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कोलोराडो ऐसी अमरीकी रियासत है जहां खिलाड़ियों की मदद के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बर्फानी इलाके खूबसूरत तो हैं, लेकिन ये मोहलिक और जानलेवा भी हो सकते हैं। अमेरिका में गुज़श्ता बरस बर्फानी तोदे गिरने से 37 अफराद हलाक हो गए थे। बर्फानी तोदों की पेशगोई करने वाले दूर उफ्तादा देही इलाकों के लोगों को अहम पैगाम देते हैं। आपके पास मौका है कि आप बर्फानी तोदों की जद में आने से बचें और अपनी जिंदगी को महफूज रखें। दूर उफ्तादा इलाकों में तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए कोलोराडो में बर्फानी तोदों का इत्तलाती मरकज़ या कोलोराडो एवलांच इंफॉर्मेशन सेंटर बर्फानी तोदों के नक्शे और हफ्तावार पेशीन गोयां फराहम करता है। वो ढलवाने जो पिछले चंद हफ्तों के दौरान महफूज थीं, मुमकिन है कि वो अब महफूज न हो। मौसमी सैटेलाइट की तस्वीर और पहाड़ी इलाके के जोग्राफिया के बारे में मुरतब की गई मालूमात से माहिरीन को बर्फानी तोदे के खतरे के बारे में पेशगी आगाह करने में मदद मिलती है। पेशीन गोई करने वाले बर्फ को खोद कर इसे चेक करते हैं, वो भी हाथ से। You can see the very large, weak depth ore at the bottom of the snowpack. इस डाटा को तेजी से हासिल करने का एक तरीका लेजर पर मबनी लेडार आलात हैं। ये 10 किलोमीटर का अहाता कर सकता है और 360 डिग्री पर जायजा भी ले सकता है। केविन हेमर्ट्स स्मार्ट प्रोब कहलाने वाले आले पर भी तहकीक कर रहे हैं। इस आले में कुव्वत मुज़ाहमत का सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर दोनों मौजूद हैं
और जब आप इसे बर्फ में डालते हैं तो ये तमाम डाटा इकट्ठा कर लेता है। कोई भी टेक्नोलॉजी हर बर्फानी तोदे की पेशीन गोई नहीं कर सकती, इसलिए माहिरीन हिफाजती क्लासेस में तरबियत लेने और एवलांच बीकन के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। ये एक रेडियो डिवाइस है जो सिग्नल भेजती है। आपके ग्रुप में शामिल ये हर एक के पास होती है। अगर कोई बर्फानी तोदे की जद में आ जाए तो बाकी ग्रुप इस सिग्नल के मिलते ही उस शख्स को तलाश कर सकता है। बज़ाहिर एक मामूली सी गलती भी मुहिम जुई को तबाही में बदल सकती है, इसलिए एथन ग्रीन ने ये मशवरा शामिल किया है। सबसे अहम यह है कि आप अपने दोनों कानों के बीच मौजूद टैक यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अच्छे फैसले करें और बर्फानी तोदों से मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाली ढुलवानों से दूर रहें। और टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम सरमा के खेलों से मोहब्बत करने वालों के पास इन ढलवानों पर जिंदा रहने का एक बेहतर मौका मौजूद है। शैली श्लेंडर के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। घरों, गाड़ियों और ज़मीनों की नीलामी के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फूलों की नीलामी देखी है, जहां फर्श पर बिखरे रंग बिरंगे फूल खरीदारों के मुंतज़िर हों? लाहौर की नैनसुख फूल मंडी वैसे तो 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन सुबह आने वाले ताज़ा फूल और व्यापारियों का हुजूम फूलों की खरीदो फरोख्त को काबिल दीद बना देता है। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। मैं डेरा इस्माइल खान से आया हूँ यहाँ फ्रेश फ्लावर ये लेने के लिए। ये ग्लैड और कट यहाँ से लेने आते हैं। वहाँ डी खान में हमारे ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। वहाँ बुकेट वगैरह और ये मुशायरी वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह ये हम बनाते हैं वहाँ पर। माल यहाँ से अभी ले लिए, नियाजी अड्डे पे जाएंगे, 11 बजे वहाँ गाड़ी पे रखेंगे तो ये रात तक 7 बजे तक हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਗਾ ਨਾਗਾ ਜੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੜਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਫੇਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ 8:30 ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। फार्मर या ताजर हजरात या दुकानदार हजरात जो है वो अपने माल को बेचने और ख़रीदने आते हैं। पंजाब के नज़दीक जो ज़िले हैं ओकाड़ा हो गया, कसूर हो गया, इससे आगे जो ये चीचा वतनी मियाँ चन्नू तक जो है, मुल्तान तक लोग इधर शेखपुरा, जड़ावाला, फैसलाबाद से लोग, गुजरावाला से और आगे जो तकरीबन गुजरात और वज़ीराबाद से भी काश्तकार इधर फूल लेके आते थे। मंडी में जो आड़ती हजरात है ये इनको स्टोर करने का इनके पास एक अच्छा जो है फॉर्मेट मौजूद है। उसके मुताबिक ये इसको पानी, बर्फ़, फ्रिज, चिलर वगैरह के साथ इसको फ्रेश रखते हैं। ये हमारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों पे लेके आते हैं। लाने का खर्चा है। गांव में जो रेडी वाले होते हैं मतलब हमारे घर तक पहुंचाते हैं, उनका खर्चा है। इसको बांधने वाले बंदे हैं, उनका खर्चा है। उसके बाद जो प्रॉफिट है या लॉस है वो हमारा है। सुबह आनियाँ फुल खरीदनियाँ, खरीद के लिजानियाँ, जाके जनाजगा दे कोल रखनियाँ। लोग आते हैं मेरे को लिजाते हैं। इत्थों वो भी फुल है जरा 50 रुपये कभी मिल जाता, कभी 100 मिल जाता है, कभी 150, कभी 100 भी मिल जाता है। अगे जाके जो फिर परहेल जाना फिर अपनी फराक कढ़ के वहाँ देने हैं। ओरिजिनल फूल की मार्केट जो है ये लाहौर में मेन मार्केट यही है। आर्टिफिशियल फूलों ने इस कारोबार को तबाह करके रख दिया है। ये मार्केट जो है फूलों की फ्रेश ये इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। फार्मर जो है वो परेशान है। ये महंगी फसलें हैं, हॉलैंड से बीज जो इंपोर्ट होके आता है वो बहुत महंगा है। लिहाजा इस वक्त जो माली हालात हैं किसानों के, आड़तियों के, दुकानदारों के, वो बहुत परेशान कुन है। नीदरलैंड्स वैसे तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है और ओवरऑल अगर हम दुनिया की प्रोडक्शन में देखें तो तकरीबन 60% से ज़्यादा हॉलैंड की जानिब से आता है। लेकिन पाकिस्तान में जो हमने अभी फूलों की मार्केट देखी, यहाँ से निकलते हुए जब फूल शॉप्स पे पहुँचते हैं तो हम काफ़ी डिफरेंट तरीके से उनको देखते हैं। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।